Good morning, students. Hope you all are fine at home. So, in this video, you are going to learn about manufacturing industries. This is the chapter number 6 of your geography book, grade 10th. So, before understanding the chapter or to read the concept, we should go through the topics that we have to discuss in this, and they are important from the exam point of view. So, let's begin. As you can see on the screen, manufacturing industries are the strong pillar of Indian economy. It's not of India only, it's of every country. So we are reading about the country India in this. And it connects all aspects of life. We use the industrial materials in daily life. Either you are using soap, you are using food stuff, yeah, anything we are utilizing that are the product of इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कम्स अंडर द सेकेंडरी जो आपका पिलर होता है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल होती है इकोनॉमी की, तो ये सेकेंडरीज में आता है. देन नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंसेस या इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. सो सबसे पहली बात, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, मीन्स इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू गेट जॉब्स. ठीक है, या जॉब अपॉर्चुनिटी आप इसको कह सकते हो. Then second thing, it supports agriculture by providing advanced technology. It supports agriculture in various fields. For example, we use fertilizers and chemicals, pesticides, insecticides and even tractor machineries to in our field. तो वो क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी से बेस्ड है, and it also enhance the output from the field. Next we have consumes agricultural product as a raw material for एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, मीन्स दैट टेक द एग्रीकल्चरल आउटपुट, या जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं रॉ मटेरियल दैट दे गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चरल. फॉर एग्जांपल शुगर केन, कॉटन, जूट, ये आपका एग्रीकल्चरल मटेरियल है जिसको हम रॉ मटेरियल के यूज़ करते हैं, एंड देन वी मेक इट्स यूजफुल प्रोडक्ट्स. Then next, provide a wide range of product in domestic sector. So this you can understand that whatever the domestic use people using material, they are also provided by the industries, and it also ensure the rapid growth of automobile sectors, IT sectors and electronic sector and other electrical goods. So these are the main significance you can say or importance of manufacturing industry. We have to discuss in this chapter is industrial location. Where can be the industry या ideal location for the industry? So main factors that affect the industrial location, क्या क्या available होना चाहिए किसी industrial setup के लिए, तो आपके पास factor responsible करते हैं इसके लिए, and these are very important from exam point of view. For example, availability of raw material. If you are setting up an industry, you must get the raw material for that. For example, textile industry, cotton textile है, तो आपको वहाँ पे cotton की field nearby होनी चाहिए so that you can get the cotton material easily. Then रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, मीन्स आपको इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो कंटिन्यू होनी चाहिए. एंड वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सबके लिए ज़रूरी है. इधर दे आर गेटिंग द रॉ मटेरियल और दे नीड टू ट्रांसपोर्ट द फिनिश्ड गुड टू द मार्केट. एंड सिमिलरली वन मोर फैक्टर अफेक्ट्स द नियरनेस टू द मार्केट. मार्केट वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, मार्केट नियर बाय होनी चाहिए सो दैट दे कैन सेल देयर गुड्स ईजीली. नेक्स्ट, लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. मींस जैसे आपके पास ये जूट वगैरह की इंडस्ट्रीज़ है, ये वेस्ट बंगाल साइड है, बिकॉज वहाँ पे इनको लेबर इजीली मिल जाती है बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा से. ठीक है. एंड वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए फॉर द डोमेस्टिक यूज़, जो उन्होंने यूज़ करना है, या एज अ कूलेंट यूज़ होता है आपका वाटर इंडस्ट्रीज़ में, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. Then favorable climate. Climate should also be favorable. Now next, very important is classification of industries. So classification, how can we classify the industries? So on the basis of source of raw material. Raw material के आधार पे हम इसको दो
मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, वो है एग्रो बेस्ड, मीन्स जहाँ से आपको एग्रीकल्चरल आउटपुट मिलेगी या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसके ऊपर बेस्ड इंडस्ट्रीज़, या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे आपके आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ आ जाती है। एग्रो बेस्ड में आपके पास आ जाती है कॉटन टेक्सटाइल या फिर जूट टेक्सटाइल, शुगर केन, दीज ऑल। देन नेक्स्ट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किसी के अपने होने के आधार पे, सो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। देन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, तो साइज़ के आधार पे या इन्वेस्टमेंट के आधार पे आप ले सकते हो इसको, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ बल्की मटेरियल, हैवी वेट मटेरियल है या लाइट वेट मटेरियल है, ठीक है, उसके आधार पे लाइट वेट या हैवी वेट इंडस्ट्रीज। देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल मीन्स की इंडस्ट्री, एक होती है बेसिक इंडस्ट्री, जैसे आयरन और स्टील है, ये आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज है। किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए आयरन और स्टील की ज़रूरत होती है। कोई भी मशीनरी है, चाहे आप शुगर केन को से जैगरी या फिर शुगर बनाने में यूज़ कर रहे हो, तो उसमें जो मशीनरी है वो सारी आपकी बेसिक मशीनरी है, बेसिक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। इसी तरह से कंज्यूमर बेस होती है आपकी सेकेंड लेवल की, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़, जिसमें कि आपके पास शुगर केन, टेक्सटाइल, ये सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं। द चैप्टर वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन डिटेल, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम कॉटन टेक्सटाइल नाउ। सो कॉटन टेक्सटाइल में आपने मेनली क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? सो अर्ली लोकेशन एंड अराउंड महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो इसकी लोकेशन जो थी एंशियंट टाइम में वो गुजरात एंड महाराष्ट्र में थी। क्योंकि वहाँ पे रॉ कॉटन मिलता था। आपको पता होगा कि जो महाराष्ट्र एंड गुजरात है वहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, एंड ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। तो रॉ कॉटन वहाँ से मिल जाता है, लेबर वहाँ पे अवेलेबल है, क्लाइमेट सूटेबल है, एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, चाहे वो सी पोर्ट से हो या फिर आपका रोड ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, तो आप इसमें पढ़ोगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, कि एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ वर्कर। आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर हमारा सबसे मेन है इंडिया में, जिसमें कि लोग इंगेज्ड हैं अबाउट 70%। तो उसके बाद जो नंबर 2 आता है वो कॉटन टेक्सटाइल में आता है, ठीक है। आफ्टर एग्रीकल्चर वी हैव लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन cotton textile sector, and then it supports the cotton farmers, and also earn the foreign exchange by selling cotton textile goods. Next we have जूट टेक्सटाइल। इन जूट टेक्सटाइल वी विल लर्न द मेजर लोकेशन, तो इसकी मेजर लोकेशन है आपकी हुगली बेसिन, दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल। एंड वाई, क्यों है ऐसा, वहाँ पे ही क्यों लोकेटेड है? तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ जूट की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई की वजह से, चीप लेबर की वजह से, फेवरेबल क्लाइमेट, एंड वहाँ पे जो कोलकाता का अर्बन सेक्टर है, सेंटर है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए ये वहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई मोस्ट ऑफ द जूट टेक्सटाइल आर अलोंग विद द हुगली बेसिन, so these are the main favorable conditions for it, and we will discuss these in detail in next video. नेक्स्ट वी हैव शुगर इंडस्ट्रीज़। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट, सारी इंडस्ट्री है ये, तो सिग्निफिकेंस सब में आपने लर्न करनी है, कि अंडरस्टैंड करनी है, दैट इट प्रोवाइड द लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके। देन इट सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ sugar cane growing farmers, and it fulfills sugar needs in large population, and sugar cane जो उससे बनता है उससे कैटल के लिए फॉडर भी मिल जाता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो यूज़, इसका जो मोलासेस होता है इट यूज इन मेकिंग एल्कोहल, सो ये अदर इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है आपकी? तो ऑलमोस्ट जो इसकी मिल्स है यूपी एंड बिहार में। ऐसा क्यों है कि वहीं लोकेटेड है, वाई नॉट इन अदर एरिया? बिकॉज इट इज़ ग्रोन इन दोज एरिया, सो now it is migrated towards the southern states like Maharashtra and Gujarat. So why? क्योंकि वहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, लॉन्गर क्रशिंग सीजन है, सीजन का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर, ठीक है। एंड सक्सेस इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इंडस्ट्रीज़ है मेन इंडस्ट्रीज़। नाउ वी हैव
बेसिक इंडस्ट्री या मिनरल इंडस्ट्रीज आप जिनको कह सकते हो, एंड दीज आर कॉल्ड की इंडस्ट्रीज. वाई इट इज़ कॉल्ड की इंडस्ट्रीज? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. Sometime in 1 marks question they can ask which one of the following is a key industry or basic industry, so they will give you options. So there you have to select iron and steel industries are the key industries. Why? Because it supports all other industries, and these are heavy industries and bulky raw material and finished goods इनसे बनता है. And next we have लार्ज एंड इंटीग्रेटेड प्लांट इन इंडिया. कहाँ पे इसके इंटीग्रेटेड प्लांट्स है? तो वो आपका छोटा नागपुर प्लेटू में है. क्यों है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे. एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाई मेजर कंसंट्रेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, मेजर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर इन छोटा नागपुर प्लेटू रीजन. ना छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है आपका वो इस एरिया में लोकेट करता है यहाँ पे. तो यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा जो है स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री मिलेंगी. ठीक है, जैसे बोकारो आ गई, जमशेदपुर, रोकी, ठीक है, भिलाई, ये दुर्गापुर, ये ऑल सारी ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम मैप स्किल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम मेन क्वेश्चंस. सो these you need to revise for the map skill also. We have some other industries like aluminium smelting, chemical industries, fertilizer industries and cement industries, automobile industries, IT industries and electronic industries. तो ये हमारी important industries है जो हमने इस चैप्टर में go through करनी है and why they are important. ठीक है, एज कुछ तो आपको नाम से ही पता लग जाती है कि इनमें क्या होगा, क्यों इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड इसके अलावा आपने इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हुआ, कैसे इसने एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया एंड व्हाट कैन बी डू टू प्रिवेंट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन. ठीक है, तो इसमें आप एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे कि एयर को इसने कैसे डिग्रेड किया है, कैसे ख़राब किया है, कैसे पॉइजनस बनाया है, क्या उसका इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे हुआ है. ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन as well as noise pollution, how it affects the people living near industrial areas. So this we have to study in this chapter. And at last, the control of the environmental pollution and degradation. So thank you very much, and in next video we will discuss it in detail. So stay tuned, stay home, stay safe. Thank you.